Okay, students, so you just need to type eBalbharti in your Google search box. Then you have to select the class that is standard, then the medium that is English medium, and all the textbooks of 9th standard English medium will be in front of you. Just choose the subject which you want. So basically, today we are going to deal with history and political science. So I have just selected that. Now then there is an option given that whether you want to download this textbook. So just click on download and the book will be downloaded. So it will take couple of minutes to download. So you have to wait and just see. Just wait for a few minutes. Okay, fine. So that's it. It's that simple, my dear students. Okay, the textbook is open. So now I have to use it in some other way. From here I can just use it properly. So this is the front page, my dear students. Lot of good images have been given. Okay, satellite का image दिया है, World Cup का image दिया है, tractor, एक stamp है, some models are walking. Then world is connected with computers, that is shown. Rocket image is there, coin is there, FTII, then Doordarshan. Some females are sitting in some rural place. So all these images are there, and these images indicate that these things are going to be like expressed in this particular textbook. Okay, information about this thing we are going to get from this textbook. That is what the front page indicates. Okay, and as you all know, the subject is history and political science, standard 9. Okay, talking about this thing, ये क्या है? तो my dear students, this is called as QR code. Okay, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं QR code. Okay, what is the use of this QR code? As I said, if you want to download this textbook, you can just scan this textbook from your scanner, okay, and easily download in your mobile. That is another way. Okay, if you are not able to search it from eBalbharti, or you can just go to Play Store and download the Diksha app also. This Diksha app is also useful for downloading textbook as well as other recorded materials from the ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कनेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, अलग अलग किसका भी रह सकता है, वी कैन नॉट स्पेसिफाई किसका रहेगा करके, बट वो तुमको यहाँ पे दिखेगा. ओके, so that is the use of this QR code. Moving further, my dear students, whenever you buy a textbook, just see to it that you are buying it of the latest year. यहाँ पे 2019 दिया है, तो 2019 is not the latest year. हमको पता है क्या रहना चाहिए, 2020 रहना चाहिए या तो 2021 रहना चाहिए. ये दोनों में से कुछ भी चलेगा. सर 2019 नहीं चलेगा क्या? 19 भी चलेगा, बट वो जूना है फिर. ओके, दैट इज द ओनली थिंग. तो पैसा हम दे रहे हैं तो जूना क्यों लेने का ना? दैट इज माय सजेशन. सो ट्राई टू बाय अ न्यू ओनली, न्यू बुक ओनली. चलिए, चलो लेट्स मूव फर्दर. So these are the names of the people who have contributed in making this textbook. Okay, all the core committee members have been there, and their name is there.
पूरा टेक्स्ट बुक किसने बनाया, कौन कौन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. देन यू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट. हमको ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है करके, ठीक है. इट इज अ सेट ऑफ रूल्स मेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, सो वी हैव टू फॉलो दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लाइक गवर्नमेंट मशीनरीज बोलो या प्राइवेट मशीनरीज बोलो या कोई भी बोलो, हमारे कंट्री में कोई भी रहेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही चलता है, चलना चाहिए. इफ एनीबडी गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज क्राइम. ओके, if you are having textbooks older than 2019 then also it is okay. 2017 okay, हाँ फर्स्ट प्रिंट है, मतलब वो 2017 फर्स्ट प्रिंट है तो नो प्रॉब्लम. So preamble means what? Year the introduction of the constitution. Constitution का introduction, जैसे इस book का introduction हम देख रहे हैं तो उसी प्रकार से constitution का introduction जो part है वो यहाँ पे दिया है. Okay, and it is a very powerful sentence, my dear student, very powerful statements given हुई है और इन सभी principles के basis पे हमारा देश चलता है. क्या बोलता है ये कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign. sovereign मतलब क्या? Independent. Socialist मतलब क्या? Ruled by the people. Secular. Secular means what? We believe in all the religions. Yes, कोई जाति धर्म बड़ा नहीं छोटा नहीं, सब एक समान है, ये हम मान के चलते हैं. And we are democratic as well as republic. That is, we people rule over ourselves. Okay, and with these principles what we want to achieve, हम कुछ principles के through कुछ objectives achieve करना चाहते हैं. क्या है वो? justice achieve करना चाहते हैं. justice in what form? justice in social form, economic, political. We also want liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And we also believe in equality, my dear students. हम equality में भी believe करते हैं. There should be equality of status and opportunity. लाइक हमारे कंट्री में हम बोलते तो हैं कि मैन एंड वुमेन आर अलाइक, लाइक इक्वल. प्रॉब्लम ये है कि कुछ जगहों पे उसको फॉलो नहीं करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. सो दैट्स द रीजन व्हाई इट इज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान में ये बोला गया है कि मेन एंड वुमेन आर अलाइक, दे आर इक्वल. फ्रैटर्निटी, माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोग कैसा रिलेशन रखने चाहिए एक दूसरे के साथ? वी शुड हैव अ ब्रदरहुडनेस. ठीक है, भाईचारा रहना चाहिए, गाय का चारा नहीं. क्या रहना चाहिए? भाईचारा. भाईचारा मीन्स ब्रदरहुडनेस. ओके, वी शुड हैव अ गुड बॉन्डिंग. बॉन्डिंग लाइक ब्रदर्स का बॉन्डिंग रहना चाहिए. And this thing we have concluded, or we have finalized this thing on the 26th day of November 1949. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने ये चीज को बनाया और एडवोकेट किया, एडॉप्ट किया on 26th of January 1956. इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं. ठीक है, संविधान को जिस दिन से हमने फॉलो करना शुरू किया वो दिन था 26 जनवरी. ठीक है, 1950, 26 जनवरी 1950. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी हैव started following the constitution. So we celebrate the Republic Day. Okay, I hope these things are clear to you people. We can move further. नेशनल एंथम बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है ये हमारे लिए करके. द प्लेज गिवन ओवर देयर. प्रीफेस, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टाइम एनी, लाइक कभी भी वक्त रहा तो इसको रीड करो. द पर्पस ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज बीन इलस्ट्रेटेड हुई कि किस उद्देश्य से ये टेक्स्ट बुक बनाया गया है करके. ठीक है, तो तुमको समय मिलता है तो इसको जरूर रीड करना. तुमको ऑथर का पर्सपेक्टिव समझेगा कि ऑथर ने क्यों ये टेक्स्ट बुक बनाया है, इसमें वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट्स गेन करें करके. नेक्स्ट इज फॉर टीचर्स, है ना. तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, टीचर्स के लिए, कि टीचर्स जब ये टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे तो उनको अपने दिमाग में किन चीजों को ध्यान रखना है करके. सो दैट इज फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव. ओके, कंटेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का समय हम लोग देखेंगे. और मैंने जैसे तुमको बताया था, वी विल बी लुकिंग आफ्टर द पीरियड ऑफ 1961 to 2000 सी. मैंने तो बोला था 1950 से लेकर 2000. उसके पीछे का रीजन था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसलिए आई सेड 1950 से 2000 तक का
कॉन्सेप्ट 2000 ही क्या टिल डेट मैंने कहा था, तो टिल डेट तक का हम लोग चीजें पढ़ेंगे करके। ओके, सो दैट इज ऑल इन द लेटर पार्ट। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। What else we are going to see, my dear students? We are going to see the chapters over here. 10 chapters हैं हमारे इस साल के हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में, 10 हिस्ट्री में है और 5 पॉलिटिकल साइंस में है। ओके, इफ I don't think so any considerable chapters will be omitted for this year. If at all anything is there, I'll just update you. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई शायद चैप्टर्स ओमिट किया जाएगा तो वो मैं तुमको अपडेट दूंगा। लास्ट ईयर किया गया था लेकिन कंटेंट्स बीच बीच में के ओमिट किए गए थे, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ओमिट नहीं किया गया था। तो इस साल हम देखेंगे कि कुछ होता है कि नहीं करके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द चैप्टर्स जस्ट विल हैव अ क्विक गो थ्रू फ्रॉम दिस चैप्टर्स। सबसे पहला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सेकंड इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो 1960 के बाद इंडिया में जो जो इवेंट्स हुए वो हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर इज इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस बीन अवर कंट्री लाइक 1960। एक अच्छा खासा कंसिडरेबल पीरियड था आज़ादी के बाद का, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के अंदर ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे विद रिस्पेक्ट टू लाइक कंट्रीज वर नॉट रेडी टू गेट मर्ज विद इंडिया। सो वो मर्जर्स कैसे कंप्लीट किया वो इंडिया इंटरनल चैलेंजेस में देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश का आर्थिक कितना प्रगति हुआ है, कितना तरक्की हुआ है, दैट वी विल बी सीइंग इन चैप्टर नंबर 4। एजुकेशन, हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम कब, कैसे और किन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, दैट विल बी सीइंग इन द 5th चैप्टर। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, तो छठा चैप्टर ये है कि वुमन का क्या रोल है इन अवर सोसाइटी एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम बीन फेस बाय द वीकर सेक्शन। ओके, दो अलग चीजें वहां पे हम देखने वाले हैं कि हाउ वुमन हैव बीन गिवन एम्पावरमेंट। लाइक वुमेन्स डे मनाया जाता है ना 8 मार्च को, तो वो क्यों मनाया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने क्या क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में डिस्कवरी किया, हमने एटॉमिक एनर्जी बनाया, रॉकेट्स बनाया, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 8th चैप्टर इज अबाउट ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, दैट इज समथिंग रिलेटेड विथ कॉमर्स टाइप टॉपिक। इंडस्ट्री क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में। 9th is changing life part 1 and 10th is changing life part 2. So what is changing life part 1, part 2? So basically, my dear students, there are some people who like in the past put a great impression on us. हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा उनका, जिसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। तो ऐसे कौन लोग थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स चेंजिंग आवर लाइफ, दैट वी विल बी सीइंग। तो एक चैप्टर में तो होगा नहीं, इसीलिए वो 2 चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, so these all things we are going to deal in this particular year's textbook. Okay, कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तुमको काफी अच्छा लगेगा। ओके, so let's proceed further, but I'll give you some time to just go through this competencies. Okay, competencies को एक बार go through करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। So just go through with these competencies.
Okay, 10 students. Fine. So we can proceed further, my dear students. चलो, competencies मतलब क्या है मैं एक बार बता देता हूँ कि competency का मतलब क्या होता है, क्षमता. Okay, capability. So after going through these chapters, you will develop these competencies. तुम्हारे अंदर ये क्षमताएं आ जाएगी. क्या क्षमता आ जाएगी? You will be able to classify the sources of history. ठीक है? Then you will be able to imagine and speculate about contemporary events while studying sources of history. Then you will be able to read and interpret references related to history. अलग अलग कौन से हिस्ट्री के ब्रांचेस होते करके मैंने बताया था, तुमको याद भी रहेगा, है ना? Ancient history, medieval history, modern history. Then you have like you'll be able to make collection of historical objects. जैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या आता है वो हमको वहाँ पे समझ में आएगा. ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, कॉइन्स, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री. इसमें कुछ सोर्सेस रिटन होंगे, कुछ वर्बल होंगे, कुछ डिजिटल होंगे. एंड देन लास्टली टू इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑब्जेक्टिवली. तो सिर्फ इतिहास को ऐसे ही मतलब किसी ने बोला है करके सुन के समझना है या फिर हमको जेन्युइनली उसको समझना है. These things will be understanding after completing these chapters. Okay? ऑब्जेक्टिवली हम लोग स्टडी करेंगे. ऑब्जेक्टिवली मतलब क्या? उद्देश्य रहेगा उसमें, है ना? कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा. यस, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिया है करके पढ़ रहे हैं हम लोग. ओके, so let's come to our first chapter, but before that I would like to clarify if any of the doubts are there with you people. So please uh, unmute and ask me if you are having any doubts. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं बढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ and you people are just quiet. ऐसा नहीं होना चाहिए. Yes, my dear students. Any doubts, any queries are there? अभी तक जो भी बताया सब समझ में आया? ओके, ठीक है. तो सर ने क्या बताया? सर ने सब चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग किया, है ना? कि टेक्स्ट बुक किसने बनाया, कौन से ईयर का बुक है तो उसको कैसे जानने का करके, हाँ, बुक में क्या दिया है करके, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बताया, नेशनल एंथम प्लेज तो हमको ऑलरेडी पता है. यस, और हम लोग इस चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बात करेंगे. ठीक है, सो सब लोग तैयार हैं? यस, रेडी? चलो, एंड वन मोर टाइम जस्ट अ रिक्वेस्ट, स्टार्ट योर वीडियोस, कीप योर वीडियोस ऑन. मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, तुम चालू रखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. सिद्धि, वीडियोस चालू रखो. शुभश्री, डोंट पुट दैट वीडियो ऑफ. निधि, राज, हाँ, आई विल बी जस्ट सेइंग दिस थिंग कपल ऑफ डेज. अभी शुरुआत है, एक दो दिन के लिए मैं बोलूंगा, बाद में मैं ये बोलना बंद कर दूंगा और स्ट्रेट अवे तुमको वेटिंग रूम में भेज दूंगा, है ना? तुमको मालूम है ये बात, तो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग. कीप योर वीडियोस ऑन. वीडियो ऑन रखोगे तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली होगा, है ना? यस, बार बार वो उंगली जाने नहीं चाहिए ना. एक बार चालू किया, मोबाइल रख दिया साइड में, बस काम खत्म. अपना ध्यान पूरा सर के ऊपर, सर की टीचिंग के ऊपर. वो बटन के ऊपर क्यों जाने का? वीडियो बार बार बंद चलो क्यों करने का? वेरी बैड हैबिट ना. यस, चलो, विल प्रोसीड. Okay, students, so the name of the chapter is sources of history. Yes, source का मतलब क्या होता है? Source, can anyone tell me what do you mean by source? Yes,
place of origin. Okay. Yes, means by which we can study history. That is correct. Okay. तो इतिहास का जन्म कहाँ से हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. एंड how we can study about history. As I said, if we want to understand history, it should be objectively. मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए. Just because someone has said, we cannot rely or believe on that particular person. Yes, we want proof. So that proof can be considered as a source of history. Okay. So there are different sources of history, my dear students. बहुत अलग-अलग sources of history हैं. जैसे हमने डिस्कस किया था, है ना, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि देयर आर रिटन सोर्सेस, देयर आर मटेरियल सोर्सेस, देयर आर ओरल सोर्सेस एंड देयर आर डिजिटल सोर्सेस, जिसको हम लोग ऑडियो विजुअल भी बोलते हैं. ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं, जिसके मदद से हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए if I say कि my dear students, in the year 1914 there was a world war being fought between the countries. वर्ल्ड वॉर हुआ था. तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे? आई वॉन्ट रेस्पॉन्सेस, मुझे आंसर चाहिए. करोगे कि नहीं करोगे, हाँ या ना? अगर मैं बोलूं कि 1914 में पहला विश्व महायुद्ध हुआ था करके, तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे. अनिरुद्ध सिंह नहीं. बाकी लोग क्या बोल रहे हो? अनम्यूट करके बिंदास बोलो, ऐसे डरो मत. नो सर. नो सर. मंदर क्या बोल रहे हो? यस मंदर. अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. नो सर. ओके. सो आई एम गेटिंग योर रेस्पॉन्सेस, मुझे तुम्हारा रेस्पॉन्स मिल रहा है. ओके. तो तुम यकीन नहीं करोगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इफ आई शो यू सम प्रूफ, इफ आई शो यू सम material, some things which were in existence during that particular period, then you will believe me, I think so. अगर मैं कुछ प्रूफ दूंगा तो मेरे पास प्रूफ में क्या है मालूम है क्या? मेरे पास प्रूफ में है 1914 की न्यूज़पेपर्स है. Yes, 1914 के न्यूज़पेपर्स आर देयर इन द आर्काइव्स इन द लाइब्रेरी. ओके. तो उन न्यूज़पेपर्स में उस टाइम पे जो हुआ था इवेंट्स, उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया है. तो उस टाइम पे क्या क्या कहाँ पे हुआ था करके. तो दैट वन थिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ. यस, कर सकते कंसिडर. मोreover माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी इमेजेस है, वीडियोस है. ओके. दिस इमेजेस एंड वीडियोस, कैन यू टेक दिस एज अ प्रूफ? क्या हम लोग इसको भी प्रूफ करके कंसिडर कर सकते हैं? यस सर, नो सर? यस. यस सर. ओके. तो ये जो मैं प्रूफ तुमको दे रहा हूँ, ये कौन सा सोर्स हुआ? ये हुआ ऑडियो विजुअल सोर्स. ठीक है. मतलब अगर मैंने इमेजेस दिखाया और वीडियो दिखाया तो वो ऑडियो विजुअल होगा. अगर मैंने तुमको पेपर दिखाया, न्यूज़पेपर दिखाया, है ना, तो वो न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा? मटेरियल सोर्स हो जाएगा, है ना. और कोई डायरी, कोई लेटर, मान के चलो किसी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को लेटर लिखा था, तो वो कौन सा सोर्स हो जाएगा? रिटर्न सोर्स. Very good, fantastic. Written sources. So this is what I want from you people, participation. Okay. तो रिटर्न सोर्सेस हो जाएगा. ओरल सोर्सेस को हम लोग वैसे उस पीरियड में इतना वैल्यू दे नहीं सकते हैं. ठीक है. ओरल सोर्सेस हम कब मानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जब रिटर्न, ऑडियो विजुअल, मटेरियल, ये कोई भी चीज नहीं था, तो उस पीरियड को ही हम लोग ओरल सोर्सेस मानते हैं. ओके. लाइक हमारे जो कहानी है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, महाभारत, रामायण, इसका सब वही है, ओरल सोर्सेस है. ठीक है. रिटर्न फॉर्म्स जो है उसको उतना वैलिडेट नहीं किया जाता, उसको उतना जेन्युइन माना जाता नहीं है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. सबका ध्यान टेक्स्ट पे. ठीक है. पे अटेंशन.
Till now, we have studied the history of ancient, medieval and modern India. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हाँ या ना, कर लिया है, बराबर है कि नहीं? तो मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीन फेजेस में हिस्ट्री डिवाइडेड है. दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. हमने ये भी बात कर लिया, शुरुआत में हमने ये बात कर लिया है ना, कि हम इस बार किसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आजादी के बाद में का, है ना. मैंने तुमको बताया था कि 1950 से लेकर अभी तक का 2020 तक का बोल सकते हैं, ये फेज का हम लोग पढ़ेंगे. लेकिन मोर स्पेसिफिकली बात करने जाए तो क्या निकल के आता है हम लोग को. More specifically, we can see we are going to study the period of 1960 to 2000, है ना. इस पीरियड का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पीरियड का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं. ओके, चलो. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. अब मैं जो बोला ऑडियो वीडियो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पॉसिबल है, मिडिवल और एंशिएंट में ये सब चीजें नहीं थी माय डियर स्टूडेंट्स, है ना. वरना फिर हमको शिवाजी महाराज का भी अच्छा फोटोज मिलता था, है ना, रियल फोटोज मिलता था हमको, पेशवा बाजीराव का मिलता था हमको, एम्परर अशोका का मिलता था. तो ऑल दिस थिंग्स वुड हैव बीन अवेलेबल, वीडियोस एंड इमेजेस मिलते थे. लेकिन उस टाइम पे मिला क्या हमको नहीं, क्योंकि उस पीरियड में ये था ही नहीं ना ऑडियो विजुअल. तो क्या था उस टाइम पे, बाकी सोर्सेस थे ना, ओरल सोर्सेस थे, मटेरियल सोर्सेस थे, रिटर्न सोर्सेस थे. तो इन सोर्सेस की मदद से हम लोग एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके ओके ओके. मॉडर्न के लिए क्या रहेगा, ऑडियो विजुअल रहेगा. मॉडर्न के लिए तो सब कुछ ही है, मॉडर्न के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. लेकिन एंशिएंट और मिडिवल के लिए हमारे पास ऑडियो विजुअल सोर्सेस नहीं है, उसके अलावा जो भी सोर्सेस है उस पर हम लोग रिलाई करेंगे. हाँ, चलो. We can study history with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and sources in the audio visual medium. है ना, बताया था मैंने तुमको कि ये है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, जिससे हम लोग इतिहास के बारे में स्टडी कर सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं, है ना. So in the modern period, we have to take note of various sources at regional, state, national as well as international level. Okay, मॉडर्न पीरियड में मतलब मॉडर्न पीरियड मतलब आज के पीरियड में हम कहाँ कहाँ का या किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. हम लोग रीजनल लेवल पे देख सकते हैं, हम लोग स्टेट लेवल पे देख सकते हैं, हम लोग नेशनल लेवल पे देख सकते हैं, एज वेल एज वी कैन सी इन द इंटरनेशनल लेवल आल्सो. ओके, वी कैन राइट द हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेस. इन सोर्सेस की मदद से इन प्रेजेंट डे आल्सो वी कैन राइट अबाउट द हिस्ट्री. ओके, दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन गिवन अबाउट द चैप्टर. ओके, थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगता है जस्ट अनम्यूट एंड आस्क. ओके ओके.
Okay, we'll continue further, my dear students. Sir, liberalization means, okay, so basically liberalization का मतलब होता है फ्रीडम, ओके, इंडिपेंडेंस, किसी भी चीज से आजादी मिलना, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं. सो किन चीजों से आजादी मिल सकती है? हमको अंग्रेजों से आजादी मिला, तो दैट इज लिबरलाइजेशन. वी कैन गेट लिबरलाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम रूल्स ऑल्सो. ठीक है, कुछ नियम कानून से भी हमको आजादी मिल सकता है, जैसे अंग्रेजों के रूल से हम लोग आजाद हुए, तो दैट इज ऑल्सो लिबरलाइजेशन. ओके, फाइन. Let's proceed further. Any doubts, my dear students? Any queries? No, sir. No, sir. Fine, fine. Nice. तो सबसे पहला जो दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिटर्न सोर्सेस, है ना. सबसे पहला जो दिया है वो रिटर्न सोर्सेस के बारे में दिया है. और रिटर्न सोर्सेस में यू कैन सी दैट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, है ना. एक रिटर्न सोर्स बताया है और उसमें बहुत सारे देखो स्पाइक्स दिए हैं. यहाँ पे एक है, फिर बहुत सारे स्पाइक्स दिए हैं. तो हमको ये स्पाइक्स क्या होते हैं सब पता है हमको, ऐसे नहीं कि नहीं पता है. कुछ एक नहीं पता रहेगा तो वही तो बताने के लिए मैं हूँ, है ना. Yes, so let's try to understand the different written sources of history. Okay, सबसे पहले है न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर्स तो सबको पता है ना. डेली जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, those newspapers are a written source. मैंने तुमको बताया भी था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर न्यूज़पेपर मैं तुमको दिखाऊंगा तो तुम यकीन करोगे कि नहीं करोगे, तुम बोलोगे हाँ सर करेंगे करके. यस. See the second one, the newspaper. Okay, periodicals. Periodicals क्या होता है? It is like newspaper only, but it comes in a particular period. मतलब क्या कि हफ्ते में एक ही बार आएगा, या 15 दिन में एक बार आएगा, या महीने में एक बार आएगा, तो उसको periodicals बोलते हैं, because it is going to come after a particular period. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? Periodicals. Done? Clear? Okay. नेक्स्ट डायरीज. मैंने बताया ना तुमको माय डियर स्टूडेंट्स, देखो कोई लोग हो सकते हैं जो डेली डायरी लिखने का आदत रखते हैं, जैसे एडोल्फ हिटलर अपना खुद का डायरी लिखते थे. ठीक है, तो ऐसे कोई रहेगा उस टाइम पे का लीडर रूलर जिसको डायरी लिखने का आदत है, और उसका डायरी अगर हमको मिल गया तो ऑब्वियसली इन हिज डायरी ही वुड हैव मेंशन्ड ऑल दोस थिंग्स, ऑल द इवेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड. कौन सा पीरियड की बात करें हम लोग? 1914 के बाद के पीरियड का बात कर रहे हैं. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था राइट फ्रॉम 1914 टू 1918 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स. 4 साल के लिए चला था माय डियर स्टूडेंट्स. समझ रहे हो? तो वो डायरीज बता सकते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था. ओके, देन यू हैव रेफरेंस बुक्स. रेफरेंस बुक मतलब क्या? किसी और चीज से रिलेटेड. ओके, say for example, if we want to know the meanings of words, so what is our reference book? Dictionary. मीनिंग अगर जानना है तो हम लोग किस में से देख सकते हैं? डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं. तो डिक्शनरी हमारे लिए क्या हुआ? रेफरेंस बुक. बराबर बराबर. अभी जैसे टेक्स्ट बुक ही हमारा मेन सोर्स है, लेकिन अगर हमको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए जो नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नोट्स को रेफर कर सकते हैं, है ना. तो वो नोट्स क्या हो जाएगा हमारे लिए? रेफरेंस बुक. डन डन. यस, चलिए. देन यू हैव करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर्स. करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? लेटर्स. ओके, तो लेटर राइटिंग को बोलते हैं करस्पॉन्डेंस. इजी. हाँ, अब तक सुना नहीं रहेगा तो पता नहीं रहेगा, लेकिन अब सर ने बता दिया है तो अब कभी भी पूछेंगे तो कोई भी बता सकता है ना. करस्पॉन्डेंस मीन्स लेटर्स. डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स. ये आर्काइव क्या होता है? आर्काइव मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ प्लेस वेयर ओल्ड records and documents have been stored. जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है? लाइब्रेरी में सभी प्रकार के क्या स्टोर होते हैं? बुक स्टोर होते हैं ना. वैसे आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट स्टोर होता है. क्या स्टोर होता है? डॉक्यूमेंट्स. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? प्लेस वेयर
where documents are stored. ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट गैजेट्स। गवर्नमेंट गैजेट्स, गैजेट्स, ठीक है, गैजेट्स बोलते हैं। ये गैजेट्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जो है वो जब ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर हमको व्हाट्सएप या फेसबुक पे नहीं देता है, बराबर है कि नहीं? व्हाट्सएप फेसबुक पे जो भी आते हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं होते, वो ऐसे ही सर्कुलेटेड मैसेजेस होते हैं। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट गैजेट्स। उसके ऊपर देखो, तुम देख सकते हो वो 4 हेडेड लायन का सिंबल होता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं हम लोग देख लेते हैं ना, नहीं तो फिर कैन यू सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है गवर्नमेंट गैजेट, ठीक है। अब ये कोई तो दूसरे कंट्री का है, ये साउथ वेल्स का है, ठीक है। इसके लिए ऐसा है अपना देखेंगे तो 400 लाइन देगा इंडिया। हाँ, दिखा सबको? यस, सो दिस इज गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का है, ओके। फाइन, डन। पोस्टेज स्टैम्प्स, माय डियर स्टूडेंट्स, पोस्टेज स्टैम्प्स पता है तुमको? अगर हमको लेटर वगैरह भेजना होता है कहीं दूर तो हमको उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप लगाना चाहिए, तो वो रेवेन्यू स्टैंप को बोलते हैं पोस्टेज स्टैंप। इसके ऊपर आगे पूरा एक डिटेल स्टडी है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा अभी बात नहीं करूँगा, ठीक है। देन यू हैव एनसाइक्लोपीडियाज। व्हाट इज एनसाइक्लोपीडियाज? तुम्हारा जो डिक्शनरी है इट इज आल्सो लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ओनली, ओके, बिकॉज फ्रॉम देयर यू गेट इन्फॉर्मेशन। तो वैसे ही एनसाइक्लोपीडियाज होते हैं, किसके बारे में? अलग अलग चीजों के बारे में। प्लांट्स के बारे में एनसाइक्लोपीडिया होगा, एनिमल्स के बारे में होगा, ह्यूमन बींग्स के बारे में होगा, बुक्स के बारे में होगा, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर, म्यूजिक के बारे में होगा, एनी फील्ड, एनी स्ट्रीम यू कैन टेक, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन will be there in that book. That book is called as encyclopedia, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एनसाइक्लोपीडिया। यस, इट्स अ वंडरफुल बुक माय डियर स्टूडेंट्स। अगर तुमको गिफ्ट में कभी किसी से कुछ चाहिए रहेगा तो यू कैन डिमांड दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, है ना। कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ना कि सर गिफ्ट में क्या लेकर के, तो गिफ्ट में तुम लोग एनसाइक्लोपीडिया किसी से मांग सकते हो कि तुमको एनसाइक्लोपीडिया चाहिए। अब जिम्मेदारी उस सामने वाले पर्सन की है कि वो कहाँ से तुमको ढूंढ के देगा, उसके लिए तुम क्या करोगे ना, वो तो कहीं से भी ढूंढ के दे भाई हमको चाहिए। हाँ, साथ में अगर सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो वो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या कि मुझे साइंस बेस्ड चाहिए, बायोलॉजी बेस्ड चाहिए, है ना। मतलब एनसाइक्लोपीडिया प्लांट्स के ऊपर है, एनिमल्स के ऊपर है, प्लैनेट्स के ऊपर है, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर है। तो हमको किस चीज का चाहिए वो हम लोग मेंशन कर देंगे तो उतना ही हेल्पफुल रहेगा, ओके। So this is the first source which we have started, that is written sources, okay. Just go through my dear students. uh, if at all any doubts are there you can just ask me. Sorry, मैंने बंद कर दिया। बस अब ये थोड़ा सा खाली हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो जस्ट देख लो और किसी सोर्स में से कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। आगे मत जाना, जो है उसमें से
Okay, students, any doubt is there? No. No, sir. No, sir. Okay. If at all anything is there, please feel free to ask. बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बिंदास पूछ सकते हो, है ना? ओके, चलिए, तो जैसे मैंने बताया था, आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा टॉपिक. ओके, I hope everyone has understood the concept which has been taught to you people, and we will meet in the next lecture of history. Okay, slowly and steadily we'll be starting with other subjects also after a couple of days. एक और दो दिन मेरा रहेगा, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा और डेली 2 लेक्चर्स फिर शुरू हो जाएंगे. ठीक है, फिर हम लोग कुछ दिन के लिए 2 लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में प्रोबेबली वी कुड इंक्रीज द लेक्चर्स टू 3 आल्सो. ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ते रहो. ठीक है, अभी मैंने आज ज़्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं है, इसीलिए कुछ काम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल से मेरे ख्याल से थोड़ा तुमको वर्कलोड दिया जाएगा. ओके, मीनिंग्स एंड ऑल जैसे मैंने बताया तुमको, थोड़ा अभी मेहनत करेंगे तो बाद में हम लोग को उतना ही आसानी रहेगा, है ना? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, बाय 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 बाय. Oh,